Hello everyone. Today we will discuss the HPLC. HPLC is the high pressure liquid chromatography. So content we will discuss introduction, principle, theory, type of HPLC. So first of all introduction. Under introduction HPLC stand करता है we can say the high pressure liquid chromatography या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं हम लोग. HPLC is a chromatographic technique that can separate a mixture of compound. HPLC के थ्रू कंपाउंड के मिक्सचर्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं. इट इज यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री आल्सो टू आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई, प्यूरिफाई द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर. क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक क्या होता है? It is a physical method through which we can separate out the compound take place between the phases of one is the stationary phase and another is the mobile phase. Stationary phase वो phase होता है जो कि stationary होता है. Stationary का मतलब होता है कि जिसका movement नहीं होता है. It will be stable, it will be stationary. The substance on which absorption of an analyte take place, it can be gel form, solid form और a solid liquid combination form. मोबाइल फेज क्या होता है? मोबाइल फेज ऐसा सॉल्वेंट होता है जो स्टेशनरी फेज पे मूव करता है. सो सॉल्वेंट विच कैरीज द एनालाइट, ए लिक्विड और ए गैस. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ HPLC. To understand the principle of HPLC, we must first look at the principle behind the liquid chromatography. लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होता है अगर ये हम समझते हैं तो वेरी इजीली वी कैन अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ HPLC. लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में एक इंजेक्टेबल इंजेक्शन पोर्शन होता है. स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सैंपल को इंजेक्ट करते हैं इनटू ए ट्यूब विच इज पैक्ड विद अ पोरस पार्टिकल. जो ट्यूब पोरस पार्टिकल से फिल होती है उसको स्टेशनरी फेज बोलते हैं. लिक्विड सैंपल को उस स्टेशनरी फेज के ऊपर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं एंड फाइनली व्हेन वी विल मूव द मोबाइल, व्हेन द मोबाइल फेज विल मूव, तो उससे क्या होता है? मोबाइल फेज के मूव करने से जो लिक्विड सैंपल अलग अलग on a basis of their gravitational force, on a basis of it will be absorbed on a different, particularly in a band form, in a on the side of stationary phase at the different particularly level. So when individual components of a samples are transported along the packed column, the liquid moved by the gravitational force and your sample components will be separated in a band form at the different particularly space, the different length. So the main principle of separation is adsorption. Theory. The particle size of stationary phase material play a very big role, crucial role in HPLC. In fact, high efficacy stationary phase materials have been researched and developed exclusively from the HPLC, having the progressively a small particle size termed as a microparticulate column packing. सो माइक्रो पर्टिकुलेट कॉलम पैकिंग उसे इसीलिए बोला जाता है कि उसमें स्मॉलर पार्टिकल साइज के पार्टिकल्स जो हैं वो प्रॉपरली पैक्ड होते हैं. द सिलिका पार्टिकल्स आर mostly uniform particle, porous particle with a spherical shape, irregular shape, are having the diameter ranges from the 3.5 to 10 micrometer. So the surface of a silica particles are covalently bonded to the silica base support particle. However, the most popular bonded phase क्या होता है? एक होता है सिलॉक्सेन. वन इज अ सिलॉक्सेन. सिलॉक्सेन में क्या होता है? सिलिकॉन विच आर अटैच फ्रॉम द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH विच आर हैविंग द OH ग्रुप. ये देख रहे हैं आप, सिलिकॉन इज हैविंग द OH ग्रुप. सो इट इज अ
particularly we can say silenol group, इसे बोलते हैं silenol group. The silenol portion जो होता है, ये जो silenol group है, जो silenol portion है, ये silenol portion it is a part of siloxane. Siloxane ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन से रिएक्ट करता है एंड इट विल जनरेट अ बॉन्डेड फेज. ये जो है, ये आपका पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनो इट्स अ सिलोक्सेन, इस सिलोक्सेन का स्ट्रक्चर है. व्हेन सिलोक्सेन रिएक्ट फ्रॉम द ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन, ये ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन से रिएक्ट करता है, तो ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन से रिएक्ट करके बॉन्डेड फेज, इस पूरे 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 स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बॉन्डेड फेज स्ट्रक्चर. ये बॉन्डेड फेज है. ओके, so it is having the silicon attached from the various methyl group, so it is a organochlorosilane. It will attach from the siloxane, siloxane से अटैच होता है. siloxane के पास जो है silenol ग्रुप होता है, silenol ग्रुप से ये ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन अटैच होता है एंड फाइनली इट विल जनरेट अ बॉन्डेड फेज. ये बॉन्ड फेज जनरेट करता है. क्लियर? सो नेक्स्ट लाइन इज अ bonded phase are found to be stable between the pH. ये जो bonded phase होता है, ये बात कर रहे हैं हम लोग कॉलम के अंदर जो पैकिंग हो रखी है, उस कॉलम के अंदर पैकिंग का को ही बॉन्डेड फेज बोलते हैं. बॉन्डेड फेज आर फाउंड टू बी स्टेबल, ये स्टेबल होता है बिटवीन द पीएच रेंज ऑफ 2 to 9 एंड अप टू द टेम्परेचर एबव द 80 डिग्री सेंटीग्रेड. आई थिंक इट्स अ क्लियर टू ऑल. नेक्स्ट इट्स अ जनरल डायग्राम ऑफ HPLC. सॉल्वेंट रिजर्वायर है, ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है सॉल्वेंट रिजर्वायर. पंप के थ्रू ये सॉल्वेंट को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कॉलम के अंदर. आपको पता है कि दो टाइप का हम लोग पर्टिकुलरली ऑन अ बेसिस ऑफ सॉल्वेंट रिजर्वायर, सॉल्वेंट के बेस पे हम लोग आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट टाइप का इल्यूशन परफॉर्म करते हैं. सो ये सॉल्वेंट रिजर्वायर पंप के थ्रू इट विल इंट्रोड्यूस द सॉल्वेंट. HPLC जो है, HPLC syringe will through which we entered the sample inside the injection port. ये इंजेक्शन पोर्ट लगा हुआ है. So through the injection port we can enter the injection. Okay, I think you understand this. इंजेक्शन, उसके बाद ये जो है सैंपल इंट्रोड्यूस होता है कॉलम में, सॉल्वेंट मूव करता है एंड आफ्टर दैट थ्रू द सॉल्वेंट it will be separate out and finally it will be detected through the detector. Next is the type of HPLC. नॉर्मल फेज HPLC, देखिए ये नॉर्मल फेज HPLC है. कॉलम पैकिंग इज, इसमें क्या होता है, जो कॉलम पैकिंग होता है वो पोलर होता है नॉर्मल फेज में. सो ऑब्वियसली जब कॉलम पैकिंग पोलर होगा, जैसे सिलिका के थ्रू हम लोगों ने कॉलम को पैक कर दिया है, एंड द मोबाइल फेज इज अ, generally the mobile phase which will use, it is a non-polar. It is used for the water sensitive compound. जो water sensitive compound है उसको separate out करने के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक कंपाउंड को, सिस ट्रांस आइसोमेरिक कंपाउंड को सेपरेट, काइरल कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए नॉर्मल फेज HPLC यूज करते हैं. याद रखना है कि नॉर्मल फेज HPLC में जो पैकिंग होता है वो पोलर होता है. मोबाइल फेज का जो यूज करते हैं वो नॉन पोलर होता है. वो सब्सटेंसेस जो वाटर सेंसिटिव होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स रखते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर्स रखते हैं, उनको हम लोग काइरल कंपाउंड्स कंटेनिंग सब्सटेंसेस वी कैन सेपरेट आउट थ्रू द नॉर्मल फेज HPLC. रिवर्स फेज टाइप का HPLC जो यूज करते हैं हम लोग, इसमें देखिए जो पैकिंग मटेरियल होता है नॉन पोलर होता है. कार्बन 18 बेसिकली पैकिंग मटेरियल यूज करते हैं. मोबाइल फेज ऑब्वियसली वाटर प्लस द डिफरेंट mixable solvents we can use in this type of reverse phase column. वाटर हायर पोलर होता है, दूसरे पोलर सॉल्वेंट्स को लेके उसकी पोलरिटी को चेंज कर सकते हैं हम, मेथेनॉल का यूज करके, एथेनॉल का यूज करके, इथाइल एसीटेट और डिफरेंट वी कैन सॉल्वेंट. इट कैन बी यूज फॉर द पोलर, नॉन पोलर, आयोनाइजेबल एंड आयोनाइजेबल सैंपल्स के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं रिवर्स फेज कॉलम.
Next is the ion exchange column. So column packing containing the ionic group and the mobile phase is buffered. It is used to separate anion or cation. Basically, the ion exchange chromatography are uh, two type based on a two type of the principle is based on a two type of the exchange. One is the anionic exchange and another is a cationic exchange. So through the ion exchange, separation is based on a anion and cation. Basically just like a simply here we are separating a protein. सेपरेशन ऑफ यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है, सेपरेशन ऑफ प्रोटीन करना है हमने. पीएच ऑफ व्हेन आपको पता है प्रोटीन का जो यूनिट होता है वो इनिशियली तो इट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ न्यूट्रल फॉर्म. व्हेन द पीएच वन यूनिट एवव आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, जब इसका पीएच एक यूनिट आइसो इलेक्ट्रिक पीएच से एवव होता है, then it will shows the negative charge. Negative charge का मतलब it will through the cationic exchange we can identify. We can separate out the protein through the anionic exchange. When the pH of the unit below the isoelectric pH, then the protein will having the positive charge. और यदि प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, then we can separate out through the cationic exchange. So we can perform the separation of protein through this method. Next, exclusion chromatography. So size exclusion chromatography is based on a principle of different size. Smaller size particle are generally interrupt inside the pores, and it will be eluted later on, and the bigger one is separated, it will be eluted initially. So molecules diffuse into the pores of the porous medium and are separated according to their relative size to the pore size. Larger molecule eluted first and the smaller molecule eluted the later. Thank you to all.